بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتی ہے، اور ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار۔ ہم خیال لوگوں کا احترام سب کرتے ہیں، لیکن اختلاف کرنے والوں کا احترام صرف بلند کردار والے لوگ کرتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، حقیقت میں وہ غیر معلوم طور پر خود ہی سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ جو شخص عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس دنیا میں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسان میں بس اس کا حال بہتر ہوگا جو اپنے گھر میں موجود ہوگا۔ ہر ایک کو جلدی معاف کر دیا کریے، کیونکہ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کا نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ اس دنیا میں اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والا شخص ہمیشہ دوسروں کے بارے میں کوئی نہ کوئی منفی رائے دیتا رہتا ہے۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزل عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ 4 چیزیں سنبھال کر رکھو، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی۔ پہلا، نماز میں دل کو۔ دوسرا، تنہائی میں سوچ کو۔ تیسرا، محفل میں زبان کو۔ اور چوتھا، راستے میں نگاہ کو۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، لیکن وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ تم اور مضبوط ہو سکو۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو اور مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ غور سے اذان کی آواز سننے سے ہی دل کو سکون مل جاتا ہے۔ جس کتاب میں عورتوں کو پردے کا حکم ہے، اسی کتاب میں مرد کو نگاہ جھکائے رکھنے کا بھی حکم ہے۔ اس دنیا میں کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو، کیونکہ اختلاف شخصیت کو بیاں کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں زبانوں کے پیچھے مت چلو، کیونکہ کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ اس دنیا میں ایک نسل کی گئی جہالت دوسری نسل کی روایت بن جاتی ہے، اور وہیں تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تنہائی میں گناہوں سے بچو، کیونکہ اس کا گواہ خود اللہ تعالی ہوتا ہے۔ جب گناہوں کے باوجود رب آپ کو عزت کی نعمت مسلسل دے رہا ہو تو ہوشیار ہو جاؤ، اور اس بات کو یاد رکھو کہ تمہارا حساب عنقریب سخت ترین ہونے والا ہے۔ بے شک عقل مند آدمی وہ شخص ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کو روکتا ہے اور غصے کے وقت اپنے جوش کو مٹاتا ہے۔ زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو
तो अपने रब को याद कर लिया करो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, क्योंकि वहां वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। जब ख्वाहिशात अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ दी जाएं, तब दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं। आसानी का इंतज़ार करना भी इबादत है, क्योंकि आजमाइशें हमेशा नहीं रहती। ज़मीर इंसान के अंदर खुदा की बहुत धीमी मगर वाज़े आवाज़ है। कभी भी किसी को अपने साथ ज़बरदस्ती बांधे मत रखना, क्योंकि आपका ऐसे करने से उनकी सारी तवज्जो आज़ादी की तरफ होगी। कश्ती भी बिल्कुल रिश्तों के जैसे होती है, क्योंकि जब तक छेद ना हो आराम से चलती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि कुछ गलत करने से ही दुख मिले, क्योंकि कभी कभी आपको हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। सीधे दरख्त और सीधे लोग सबसे पहले काटे जाते हैं। तकलीफ इंसान नहीं उनके लहजे देते हैं, और कभी कभी इंसान के अल्फाज एक हंसता बसता इंसान मार देते हैं। इस दुनिया में इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश सुकून होती है, जिसको अल्लाह ने नमाज में रखा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सजदे में बेचैन दिलों की शफा रखी है। जब आपका दिल थक जाए तो जान लो कि आसमान से तुम्हारी मदद के लिए फैसले हो चुके हैं। लोगों के गुलाम मत बनो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया है। नसीब हार जाता है, लेकिन दुआ हमेशा जीत जाती है। इसलिए बस यकीन के साथ अपने अल्लाह ताला से मांगते रहो, और वो रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। हजरत अली ने फरमाया कि यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो कि मेरा रब रास्ता बना देगा। ये दुनिया तुम्हें खुद नामुमकिन से डराती है, लेकिन ये बात याद रखना कि तुम्हारा अल्लाह अकेला इस दुनिया पर भारी है। मोहब्बत में वक्त लाजमी है, चाहे वो अल्लाह से की जाए या उसके बंदों से। जो शख्स बेबसी में अपने अल्लाह को याद करता है, उसे अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। हजरत अली ने फरमाया कि अजान और बारिश के दौरान मांगी हुई दुआएं कभी रद्द नहीं होती। बंदा जब तक नमाज में होता है, उसके सर पर नेकियों की बारिश होती रहती है। इस दुनिया में रोता वो इंसान है जिसने रिश्ते दिल से निभाए हों, वरना मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में ना तो शर्म होती है और ना ही पानी। हजरत अली ने फरमाया कि अगर किसी से मोहब्बत होने लगे तो सदका दो, क्योंकि अगर मोहब्बत हुई तो तवील हो जाएगी, और अगर बला हुई तो टल जाएगी। इस दुनिया में दो काम बहुत मुश्किल हैं। एक उस शख्स के साथ रहना जिससे आपको मोहब्बत ना हो, और दूसरा उसके बगैर रहना जिससे आपको मोहब्बत हो। जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिकों के साथ होती है। इस दुनिया में जो चुगलखोर की बात पर एतबार करता है, वो अक्सर अपने रिश्ते खो देता है। अक्लमंद वो है जो अपनी ज़बान को गीबत से बचाए, और मोमिन वो है जिसका दिल शक से पाक हो। इस दुनिया में जो तुमसे नेक गुमान रखें, उसके गुमान को
सच्चा साबित करो। हजरत अली ने फरमाया, तुम जो गाली गुस्से या मजाक में देते हो वो तुम्हारी कब्र के लिए एक बिच्छू बन जाती है। इंसानियत एक बहुत बड़ा खजाना है और इसको लिबास में नहीं बल्कि इंसान में तलाश करो। कभी गम ना करना कि ये दुनिया तुम्हारे साथ नहीं है, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। इस दुनिया में ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं, मगर वहीं सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। इस दुनिया में हर शख्स की कीमत वो हुनर है जो उसके अंदर मौजूद है। ऐ लोगों, अपनी तरबियत की जिम्मेदारी खुद उठाओ और रूह को उन आदतों से आज़ाद करो जिनमें गिरफ्तारी हो चुकी हो। मोमिन वो नहीं है जिसकी महफिल पाक हो, बल्कि मोमिन तो वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। जब मोहब्बत कामिल हो जाती है तो अदाब की शर्त खत्म हो जाती है। खालिक के साथ अदाब का दावा गलत है, क्योंकि जब तक तुम मखलूक के साथ अदाब का ख्याल ना रखें। ए दिल, अगर तू तवाज़े इख्तियार कर ले तो सारी दुनिया की मखलूक तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। औरत में अगर ये 5 निशानियां देख लें तो समझ जाएं वो नेक और पुर-इखलास है। पर्देदार, सच बोलने वाली, निगाहें नीचे रखने वाली, खामोश रहने वाली और आहिस्ता बात करने वाली। अगर रोजी अकल से हासिल की जाती तो दुनिया के तमाम बेवकूफ भूखे मर जाते। इस दुनिया में आदमी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो हर सुनी सुनाई बात पर यकीन करता है। इस दुनिया में जो शख्स अपने हर काम को पसंद करता है उसकी अकल में कमी आ जाती है। खुद को बदलो, फिर देखना तुम्हारी किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। इस दुनिया में ऐसा सफर मत करिए जिसमें आप आगे जाने के बजाय पीछे चले जाएं। गम आदमी को अक्लमंद बना देता है। अगर रिश्तों को बचाना चाहते हो तो अपनी गलतियों को सुधारना सीखो। परिंदे जब उड़ने की ठान लेते हैं तो हवा को भी उनको रास्ता देना पड़ता है। इस दुनिया में आजकल रिश्तों की नहीं बल्कि मतलब की कदर होती है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपनों में अपनों को तलाश करना है। इस दुनिया में जब यकीन टूटता है तो सबसे पहले ज़बान चुप हो जाती है। हजरत अली ने फरमाया कि इस दुनिया में तमाम रिश्तों में सबसे कमज़ोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और तुम्हारी रूह का है, क्योंकि ना जाने किस वक्त और कहाँ टूट जाए। इस दुनिया में अक्लमंद और हसास लोग हमेशा गम और फिक्र में मुब्तला रहते हैं। कोई भी बात समझने के लिए पूछा करो, ना कि उलझने के लिए। हराम कामों से नफ्स को रोकना भी सब्र की दूसरी किस्म है। अल्लाह ताला ने तुम पर तुम्हारी माओं की नाफरमानी को हराम करार दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस दुनिया में जिसको अपने मुसलमान भाई का दर्द ना हो वो मेरी उम्मत में से नहीं है। अल्लाह ताला मैदान हश्र में फरमाएगा कि हर उस शख्स को दोज़ख से निकाल दो जिसने मुझे एक दिन भी याद किया हो या मुझसे किसी मकाम पर डरा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। इस दुनिया में इंसान को बुखार
जहन्नम की भाप के असर से होता है, इसलिए उसे पानी से ठंडा किया करो। जन्नत में ना तो कोई मक्कार आदमी दाखिल होगा, ना ही बखील और ना ही लोगों पर एहसान जताने वाला। इस दुनिया में कामिल मोमिन वो है जो खुश इखलाक हो और अपने घर वालों से नरमी का सलूक करने वाला हो। जो काम तुम लोगों के सामने करने को नापसंद करते हो, वो तन्हाई में भी ना किया करो। तुम जब तक सही मायनों में मोमिन नहीं हो सकते, जब तक तुम आपस में एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत ना करो। गुस्सा ऐसी चीज है जो आंखों को बंद कर देता है और मुंह को खोल देता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जन्नत में कसरत से उन लोगों को देखा जो दुनिया में फकीर थे। मरहम की लालच में अपनी दुखती रग का पता लोगों को देना बेवकूफ़ी है। यादों में बड़ी ताकत होती है क्योंकि वो आज को कल में जिंदा रखती हैं। इस दुनिया में जिस दिल में खुलूस का जज्बा नहीं, वो उस सीप के मानिंद है जिसमें मोती नहीं हो। दुनिया को नहीं बल्कि दुनिया बनाने वाले को राजी कर लो, फिर देखना कामयाबी तुम्हारे कदमों में होगी। वालिदैन के नौकर बन जाओ, अल्लाह तुम्हें दुनिया का बादशाह बना देगा। इस दुनिया में लोग चेहरे और माल देखते हैं, लेकिन मेरा अल्लाह अपने बंदों के दिल और आमाल देखता है। गुनाह ऐसी लानत है जो कि इंसान के दिल को काला कर देता है। ए इंसान, कहीं अपनी जिंदगी आसान बनाते बनाते अपनी मौत को मुश्किल ना बना लेना। हम नेक का गुनाह और गुनाहगार की नेकी, ये दोनों ही चीज़ें हम इंसानों से दूसरों की बर्दाश्त नहीं होती। हम इंसान भी कितने अजीब हैं कि हम इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। लोग हसद आपसे नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी में मौजूद सुकून, खुशियों और बेशुमार नेमतों से करते हैं। हमेशा यही सोच रखो कि मुझे मेरे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, क्योंकि अगर मेरे अमाल के मुताबिक अल्लाह मुझे देता तो मेरे पास कुछ भी नहीं होता। इस दुनिया में जो लोग आपसे बुग़्ज़ या हसद रखते हैं, उनसे नफ़रत ना करिए, क्योंकि यही असल में आपके असल चाहने वाले हैं, जिन्हें मुकम्मल यकीन है कि आप उनसे बहुत बेहतर हैं। सख्त हाथों से भी छूट जाती हैं उंगलियां, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत से थामे जाते हैं। लोग अच्छा पढ़ना और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो हैं जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। इस दुनिया में खामोशी एक ऐसी इबादत है जिसे फरिश्ते लिख नहीं सकते, शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता और कोई उसे जान नहीं सकता। इस दुनिया में सच्चा रिश्ता कुछ नहीं मांगता सिवाय वक्त और इज्जत के। अपनों को जब किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए, तब वो अपने अपने नहीं रहते। छोटी सी जिंदगी ने बड़ा सबक दिया कि रिश्ता सबसे रखो, लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। खामोशी तमाम सवालों का बेहतरीन जवाब है और आपकी मुस्कुराहट हर हालात का बेहतरीन रद्द अमल। इस दुनिया में रिश्तों को संभालने के लिए झुकना पड़े तो झुक जाओ,
लेकिन अगर हर बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाओ। माफ़ी से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो बातें दिल को लग जाती हैं वो दिल से कभी नहीं जाती। इज्जत से अपनी जगह तन्हा खड़े रहना इस दुनिया में उस सास से बेहतर है जो आपकी इज्जत नफ्स को कुचल डाले। इस दुनिया में हर बार कसूर तरबियत का नहीं होता, क्योंकि बाज दफ़ा कुछ रंग सोहबत के भी चढ़ जाते हैं। जिंदगी को समझने के लिए आपकी उम्र ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी जब अपना फ़लसफ़ा समझाने पे आए तो खुद ब खुद अक्ल आ जाती है। जो चीज़ें दिल में गूंजती रहें वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। इस दुनिया में कमाल करने वालों को कब लगता है कि उन्होंने कोई कमाल किया है? इंसान कितना ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अपनों को तकलीफ में देखकर मोम हो जाता है। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार ज़रूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। और वहीं बुराई का रास्ता बहुत आसान सही, लेकिन मंजिल हमेशा तबाही होती है।